Today we are going to do diagonalizable matrix. As we see the diagonalizable matrix, this is related to diagonal matrix. Okay, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे diagonalizable term आया है, it is related to diagonal matrices. So first definition, a square matrix A is said to be a diagonalizable matrix if it is similar to a diagonal matrix. Okay, we know about similar. Similar क्या होता है हम already previous lecture में कर चुके हैं. Now diagonal matrix हमें पता है वो क्या होता है, we already know. Now that is a square matrix A is diagonalizable if there exists a non-singular matrix P such that P inverse AP is equal to D, where D is diagonal matrix. Okay, और diagonal matrix में हम कैसे लिखते हैं, A11, A22 and so on, ANN. These are the element of principal diagonal. So we can write it diagonal of lambda 1, lambda 2 and so on, lambda n, because in the diagonal matrix the eigenvalues are nothing but principal diagonal entries of the diagonal matrix. तो जो हमारे A11, A22 एंड सो ऑन ANN है वो हमारे आइगन वैल्यूज होंगे उस मैट्रिक्स की, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स की. ठीक है, सो वेयर लैम्डा आइज आर आइगन वैल्यूज ऑफ D. ओके, अब देखो ये D जो है दिस इज सिमिलर टू A, or we can say A is similar to D because we know already the relation of similarity is equivalence, hence symmetric. ठीक है, तो जो आइगन वैल्यूज D के होंगे वही आइगन वैल्यूज A के भी होंगे. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ where lambda i's are the आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A जो कि डायगोनलाइजेबल है. समटाइम आप ऐसे भी देख सकते हो, कहीं पे ऐसा भी लिखा होगा A is diagonalizable if there exists non-singular matrix P such that A is equal to P inverse DP. ठीक है, अगर ऐसा भी लिखा हो तब भी आप यही कहेंगे A is diagonalizable. ठीक है, because we already know रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी इज इक्विवेलेंस. ठीक, तो ये सिमेट्रिक होता है, तो A इज सिमिलर टू D लिखना और D इज सिमिलर टू A लिखना एक ही बात है. तो कुछ बुक में आपको इस तरीके से डिफाइन हो सकता है वेयर D इज ऑफकोर्स डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, सेम यहीं से आया है, आप ये समझ लेंगे ये. ठीक है, तो आप किसी भी डेफिनेशन को फॉलो कर सकते हैं, बोथ आर सेम. ऑफकोर्स अगर P इनवर्स यहाँ पे P इनवर्स भी हो तब भी डेफिनेशन आर सेम. वन नोट, P इनवर्स A एंड P, A and P, suppose they all are real, then okay, P inverse AP they all are real, then D cannot be not real. अगर P inverse AP ये तीनों रियल मैट्रिक्सेस है, because we know here P inverse AP is equal to D, because we are taking here A is diagonalizable. If A is diagonalizable then it satisfies this relation, or if A satisfies this relation for any P non-singular matrix, then we say
A is diagonalizable, the definition are always if and only if. Okay, तो यहाँ पे देखो P inverse AP they all are real, then D cannot be not real. So अगर A, P और P inverse real है तो D को real होने से कोई नहीं रोक सकता, D has to be real. ठीक है, so if D is real, so lambda I cannot be not real. That is lambda I cannot be not real. Okay, अगर ये रियल है इट मीन्स अगर P इनवर्स AP रियल फील्ड से लिए है, okay, if A is real field, if A is taken from the real field, then the D must be real field. Okay, then the lambda I, okay, lambda I which is the eigen values of A को रियल होने से कोई नहीं रोक सकता. It means the lambda I must be real if this is diagonalizable. Okay, if A is diagonalizable then lambda I, अब यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है, नोट 1 कर देते हैं, नोट सेकेंड, if A is diagonalizable, A is real, okay, real diagonalizable matrix. It means real diagonalizable matrix कह रहा तो the entries of A taken from the real field. Okay, then it imply all lambda I must be real. Okay, real. ठीक है, so यहाँ से एक मुझे नोट्स मिला. अब देखो नॉट क्यों इम्प्लाई नॉट पी. इफ A is real diagonalizable matrix then lambda I are reals, lambda i's are real. If lambda I is non-real, okay, lambda i's are non-real, non-real का मतलब हो गया ये कॉम्प्लेक्स का हो. ठीक है, lambda i's are non-real, of course lambda I is the eigen value of real matrix. Okay, इस तरीके से लिखते हैं where lambda i's are eigenvalues of real matrix A. Then if this not, then A is real non-diagonalizable matrix. A is real non-diagonalizable matrix. ये diagonalizable नहीं हो सकता. तो for example एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं. सपोज A इक्वल्स टू नॉट क्यू इम्प्लाई नॉट P का एप्लीकेशन देखिए, यहाँ पे भरपूर यूज होता है ये नॉट क्यू इम्प्लाई नॉट P कंडीशन. सो A इज इक्वल टू 0 -1 1 0. इज दिस डायगोनलाइजेबल क्वेश्चन है हमारा. इज दिस डायगोनलाइजेबल? ऑफ कोर्स दिस इज टेकन फ्रॉम द रियल फील्ड R ओवर द R. ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेंशन होगा अगर रियल फील्ड है, आप अगर यहाँ पे रियल डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स बोला है, इट मीन्स द एंट्रीज ऑफ ए इज टेकन फ्रॉम द रियल फील्ड R. सो दिस इज ओवर द R. क्या ये ओवर R डायगोनलाइजेबल होगा? सो वी जस्ट चेक इट्स आइगन वैल्यूज. ओके, वी नो द आइगन वैल्यूज. The determinant of A minus lambda I equals to 0. Okay, or we know the characteristic equation of the order 2 matrix. So lambda square minus trace of A into lambda plus determinant of A, which is 0 minus plus 1 is equal to 0.
सो यहाँ से हम देख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0. So it gives the lambda is equal to plus minus iota. So this cannot belongs to R. We can see here this is not belongs to R. So आप डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हो A is not diagonalizable. जो आइगन वैल्यूज है वो रियल फील्ड से नहीं आया, तो हम बोल सकते हैं वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा ओवर द रियल फील्ड. ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड क्या होगा तो हम आगे देखेंगे वो. ठीक है. सो अभी हमें ये पता चला है, अभी एक ही कंडीशन हमने यूज किया है, जस्ट पहले नोट से ही सेकेंड नोट्स बनाया है, ये ध्यान रखें आप. अगर ए गिवन है रियल फील्ड से, ओके, ओवर रियल फील्ड आर, और वो डायगोनलाइजेबल है, तो उसके आइगन वैल्यूज भी रियल ही होंगे. अगर ऐसा है बट रियल आइगन वैल्यूज नहीं आ रही, इट मीन्स given matrix cannot be diagonalizable over the real field. तो ये फोकस कर रहे हैं हम रियल फील्ड का. ठीक है, रियल फील्ड में था. नाउ कुछ रिजल्ट्स लिख लेते हैं. ठीक है, which will very helpful to determining whether the given matrix diagonalizable or not. अगर ये रिजल्ट आपने याद रख लिए तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन डायगोनलाइजेबल से आपके हाथ से नहीं जा सकता जो आपसे सॉल्व ना हो. ऑफकोर्स अगर मैं रिजल्ट कह रहा हूँ तो ये मैंने कहीं किसी थियरम से ही लिखे होंगे, तो आप ध्यान रखिएगा इसका. सो फर्स्ट रिजल्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ओके, कुछ लोग इस रिजल्ट को डेफिनेशन में भी यूज करते हैं. तो n स्क्वायर मैट्रिक्स is diagonalizable if and only if it has n linearly independent eigenvectors. This result is if and only if. Okay, जब भी if and only if रिजल्ट आते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, आप उसको एज ए डेफिनेशन यूज कर सकते हो. क्या कह रहा है, n स्क्वायर मैट्रिक्स इज diagonalizable if and only if it has n li eigenvectors. तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं. अगर आपके पास कोई गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसके आइगन वेक्टर्स देख लो, वो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो द गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल. यानी डायगोनलाइजेबल मतलब the given matrix is similar to D, where D is diagonal matrix. Or we can say there exists non-singular matrix P such that P inverse AP is equal to D. तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं if we have this result. तो देखो, अब मैं एक्चुअली इसका प्रूफ नहीं कराऊंगा. अगर प्रूफ करेंगे भी तो नेक्स्ट लेक्चर में या तो लास्ट में हम करेंगे. पहले एप्लीकेशन पे फोकस कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज ए इज, छोटा ले लेते हैं एग्जाम्पल 1 3 1 -2 and 0. देखो इस नोट्स के थ्रू हम कर रहे हैं, या इस रिजल्ट के थ्रू हम कर रहे हैं. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर ये li आइगन वेक्टर कह रहा है तो वी नो देयर आर x1 x2 xn li आइगन वेक्टर. सो यहाँ पे मैं जस्ट थोड़ा सा आगे भी लिखना चाह रहा हूँ. यहाँ पे एग्जाम्पल बाद में कर लेंगे. मोर ओवर x1 x2 एंड सो ऑन xn आर li आइगन वेक्टर्स corresponding to lambda 1, lambda 2, lambda n. Of course here lambda may be repeated, so lambda I need not to be distinct. Okay, तो lambda repeated भी हो सकते हैं. Then a of xi is equal to lambda I xi. ठीक है, so this means the xi is the eigenvector
corresponding to this lambda I. तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, देख चुके हैं. नाउ एग्जाम्पल एक आप देख लेते हैं. हमारा a इक्वल्स टू अभी मैंने लिखा था. So its characteristic equation, first we have to find the eigen value for finding the eigen vectors. So for finding the eigen value we have to know its characteristic equation. So the characteristic equation is lambda square, because its order is 2, minus trace of a plus determinant of a. ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको. ऑफकोर्स यहाँ पे लैम्डा से मल्टीप्लाई भी करना है. लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस इज 3 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 माइनस 2 विच इज प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से फैक्टर कर लो आप. सो लैम्डा विल बी 1 and 2. नाउ सो लैम्डा तो 1 2 आ गया. अब डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आ गई हमारी 1 and 2. वी मस्ट फाइंड द आइगन वेक्टर corresponding to distinct eigen value. we must have distinct eigen vector. otherwise आप कर सकते हो a minus corresponding to 1. okay, corresponding to 1 यानी suppose this is lambda 1, this is lambda 2, corresponding to lambda 1 we have the eigen vectors. we have the eigen vector. तो ये कैसे आप निकालते हो? दिस a माइनस ये वाला रिलेशन, ऑफकोर्स ये रिलेशन इस तरीके से मैं कर देता हूँ. चलो ax1 माइनस इज इक्वल टू 1 इंटू x1. ओके, तो x1 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी. a माइनस आई x1 इक्वल्स टू 0. इसको लेफ्ट हैंड साइड लाए. ठीक है, तो a माइनस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो 3 माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 माइनस 1 0 minus 2 0 minus 1. So this matrix, this is x1 is the form of x1 x2, and this 0 is 0 comma 0 0 0. So यहाँ से आपने सॉल्व किया x1 और x2 की वैल्यू निकालनी हमें. तो यहाँ पे क्या आया? 2x1 प्लस 0x2 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे 1 होगा. देखो गड़बड़ हो रहा है. यहाँ पे 1 और -2 को कुछ नहीं करना है, बस डायगोनल में सब्ट्रैक्ट होगा -1 बिकॉज दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो दिस इज x2 इज इक्वल टू 0 बिकॉज जो x होगा वो 0 नहीं आना चाहिए. बाय द डेफिनेशन ऑफ द आइगन वेक्टर x1 कैन नॉट बी 0. ओके, सो यहाँ से आप देख सकते हो x2 इज इक्वल टू -2x1. सो x1 x2 कैन बी रिटर्न एज x1 और x2 की वैल्यू -2x1. देन दिस इज 1 -2 x1. if x is equal to 1 then 1 - 2 is a eigen vector. okay, this is x1. तो एक आइगन वेक्टर हमारा ये आया. ठीक है, सिमिलरली आप x2 भी निकालेंगे, वो इससे इंडिपेंडेंट आएगा. तो इंडिपेंडेंट हम बता सकते हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट आप कैसे शो करते हो हमें पता है, वो आप देख सकते हो. ठीक है, x2 आप खुद निकालेंगे. बोथ विल बी x1 x2 will be linearly independent, hence this is diagonalizable. okay, अगर यहाँ पे ये आइगन वैल्यू रियल फील्ड से नहीं आते तो यहीं पे बोल सकते थे दिस इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर द रियल फील्ड R. सो रिजल्ट फर्स्ट. अब रिजल्ट सेकंड आते ही आप बता पाओगे, यहीं पे बता पाओगे इज the given matrix is diagonalizable. So result second. If all eigenvalues of matrix A of order n are distinct, then it is always similar to diagonal matrix. Hence,
the matrix A is diagonalizable and not conversely. अगर आइगन वैल्यू सेम है तब भी वो डायगोनलाइजेबल हो सकता है. कन्वर्स पार्ट के लिए वी हैव एन एग्जांपल. सपोज A equals to 1 0 0 0 3 1 0 -2 and 0. सो आप इसके आइगन वैल्यूज आप देख सकते हो. ठीक है, डायगोनल ब्लॉक डायगोनल से कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि देखो इसका 1 by 1 का मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यू 1 है. अब इसका देख सकते हो, इसको ऑलरेडी हमने प्रॉब्लम 1 में डिस्कस कर चुके हैं. ये वाला 3 1 -2 0. ठीक है, इसमें आइगन वैल्यू क्या आ रहे थे? 1 और 2 1 2. सो एक आइगन वैल्यू 1 है, सो इसका आइगन वैल्यू जो होंगे 1 1 2. ठीक, देन इस देखो ये रिपीट हो रहा है, ये 2 है, मतलब आइगन वैल्यू ऑल आर नॉट डिस्टिंक्ट. ठीक है, सभी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट नहीं है, फिर भी ये A इज डायगोनलाइजेबल. अभी हमारे पास एक रिजल्ट है, आप वहां से कर सकते हो, नहीं तो इस मैट्रिक्स को हम नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट रिजल्ट से प्रूफ करेंगे.